हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बेरोजगार युवाओं को 3,000 की मासिक आर्थिक सहायता देने का भी भारतीय जनता पार्टी भरोसा दिलाती है। তৃণমূল জমানায় দীর্ঘ 1.5 শতকের মহাজঙ্গলরাজ দুর্নীতি আর ভয়ের রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে এক নতুন ভোরের প্রতীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ। যে বাংলাকে একসময় গোটা বিশ্ব প্রণাম জানাতো, সেই সোনার বাংলা আজ কেবল হাহাকার আর বঞ্চনার সাক্ষী। কিন্তু সময় বদলেছে। আজ শহর থেকে গ্রাম, উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, প্রতিটি বাঙালির মনে পরিবর্তনের যে ঢেউ উঠেছে, তাকেই এক নির্দিষ্ট দিশা দিতে কলকাতায় পা রেখেছে আধুনিক ভারতের চাণক্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার হাত ধরেই আজ উন্মোচিত হলো এক ঐতিহাসিক নথি, বিজেপির সংকল্পপত্র। 2026-এর নির্বাচনের পর এক নতুন সমৃদ্ধ এবং ভয়মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়ার সুনির্দিষ্ট ব্লুপ্রিন্ট, যে পশ্চিমবঙ্গে সবার অধিকার থাকবে সুরক্ষিত। ये 15 साल एक प्रकार से बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए काल रात्रि के दुस्वप्न समान रहे हैं। बड़ी आशाओं के साथ कम्युनिस्ट शासन से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता ने ममता दीदी को मैंडेट दिया था। 5 साल कम पड़े हैं ऐसा कर कर दूसरा मैंडेट भी प्राप्त किया और फिर अपने सिंडिकेट, गुंडे और घुसपैठियों की नाकचूड़ से तीसरा मैंडेट भी उन्होंने प्राप्त किया। मगर 15 साल में जिन आशाओं के साथ ममता जी को बंगाल की जनता ने सत्ता का सुकान दिया था, वो भयभीत है जनता, निराश है और मन से परिवर्तन चाहती है। और विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में मान्यता हासिल की है। आज बंगाल की विधानसभा में हम मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं और यही 10 साल में पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकाभिमुख शासन कैसे हो सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित करने का काम किया है। न केवल देश के सामने की सारी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास, निराकरण करने में सफलता प्राप्त करना, परंतु कई सालों से दुनिया में विकास की रेस में पिछड़े हुए देश को सारा घाटा भरपाई कर कर फ्रंट रनर के रूप में प्रस्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक फैले पूरे देश में हर तबके, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, सभी की आकांक्षाओं को संजोकर एक मजबूत, सुरक्षित, शिक्षित और विकसित भारत का स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के सामने रखा है और वो स्वप्न की साकार करने के लिए 12 साल में अहर्निश प्रयास भी किया है। বিজেপির সংকল্পপত্রে নারী কল্যাণে একের পর এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অমিত শাহ ঘোষণা করেছেন দুর্গা সুরক্ষা সহায় প্রকল্পের। এই প্রকল্পের অধীনে বিজেপি সরকার গঠন করলেই বাংলার প্রতিটি দরিদ্র মায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসের 1 থেকে 5 তারিখের মধ্যে সরাসরি 3,000 টাকা পৌঁছে দেওয়া হবে। এই অর্থ নারীদের স্বনির্ভরতা ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করবে। এছাড়াও সরকারি চাকরিতে মহিলাদের জন্য 33% সংরক্ষণ এবং নারী নিরাপত্তার স্বার্থে বিশেষ মহিলা পুলিশ ব্যাটালিয়ন তৈরির সংকল্প নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ব্লকে তৈরি হবে মহিলা থানা।
নির্যাতিত মহিলাদের সুবিচার দিতে হাইকোর্টের কোনো অবসরপ্রাপ্ত মহিলা বিচারপতির নেতৃত্বে তৈরি হবে বিশেষ কমিশন, যার ফলে সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে বাঁচবেন রাজ্যের মা বোনেরা। मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और गरीब, वो सभी में महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई है। जब तक ये गड्ढा नहीं भरता है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए निशुल्क HPV टीकाकरण, कैंसर की स्क्रीनिंग और 100% इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी, हर प्रसूता को डिलीवरी के समय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का फायदा मिले, वो हम सुनिश्चित करेंगे। তৃণমূল জামানার সবচেয়ে বড় শিকার বাংলার যুব সমাজ। মেধা যখন রাস্তার ধুলোয় লুটোপুটি খায় আর অযোগ্যরা যখন টাকার বিনিময়ে চাকরি পায়, সেই অন্ধকারের অবসান ঘটাতেই বিজেপির এই সংকল্পপত্র। অমিত শাহ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আগামী 5 বছরে বাংলায় 1 কোটি কর্মসংস্থান ও স্বনিযুক্তির সুযোগ তৈরি করা হবে। মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ হবে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার। আর যারা এখনো দিশা খুঁজে পাননি, সেই বেকার যুবকদের জন্য মাসে 3,000 টাকা ভাতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য 15,000 টাকার বিশেষ সহায়তা যুবকদের আত্মবিশ্বাসে নতুন ধার দেবে। উত্তরবঙ্গে AIIMS, IIT এবং IIM এর মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্প্রচারণ বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার এক স্বর্ণযুগের সূচনা করবে। आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए 3,000 रुपयों की घोषणा की है। इसके साथ साथ पुलिस बल सहित राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। 75 लाख लखपति दीदी बनाकर हम महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। हर मंडल में कम से कम एक महिला थाना और प्रत्येक पुलिस थाने में सहायता का डेस्क बनाएंगे और हर महिला को सुरक्षा का वादा पूरी करने के लिए ये थाने और ये महिला डेस्क अहर्निश दिन रात कार्यरत रहेंगे। और कभी भी हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना पड़ेगा कि इतनी देर रात को महिलाओं ने बाहर निकलने की जरूरत क्या है। ऐसे बंगाल का हम निर्माण करेंगे। मातंगिनी हाजरा और रानी रासमती राज्य रिजर्व पुलिस बल की 2 महिला बटालियनें हम बनाएंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट उसकी गर्भावस्था के कालखंड में हम देंगे। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं और प्राणी मित्र कार्यकर्ताओं के मानदेय को वैज्ञानिक रूप से तर्क संगत बनाकर अच्छी खासी बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। राज्य संचालित सभी बसों में महिलाओं का 100% निःशुल्क परिवहन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करेगी। संदेश खाली की घटना को एक प्रतीकात्मक रूप से मानकर इस प्रकार की सभी पीड़ित महिलाओं की सुनवाई के लिए एक महिला रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में सारी पीड़ित महिलाओं की सुनवाई और आगे पर ऐसी घटनाओं न हो, इसके लिए जांच कराने का एक हम मामला तय करेंगे। পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় সংকট হলো অবাধ অনুপ্রবেশ। ভোট ব্যাংকের লোভে তৃণমূল যে দরজা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রবেশকারীদের জন্য খুলে রেখেছেন, বিজেপি সরকার তা চিরতরে বন্ধ হবে বলে সংকল্পপত্রে জানিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কড়া ভাষায় ঘোষণা করেছেন ডিক্টেট, ডিলিট এবং ডিপোর্ট নীতি, অর্থাৎ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের বিতাড়িত করা হবে। সীমান্ত সিল করে দেওয়া হবে যাতে একটি গরুও পাচার না হতে পারে।
ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা ইউসিসি কার্যকর করার মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাই এই সংকল্পপত্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। 1 करोड़ स्वरोजगार और रोजगार के तक हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को लगाकर नई रोजगारी खड़ी करेंगे, स्टार्टअप का जाला बुनेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से हजारों युवाओं को उद्योग साहसिक बनाने का काम भी हम करेंगे। बेरोजगार युवाओं को 3,000 की मासिक आर्थिक सहायता देने का भी भारतीय जनता पार्टी भरोसा दिलाती है। पलायन और ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए अगले 5 वर्ष में रोजगारी की अपार संभावनाएं हम सृजित करेंगे और तुरंत जो युवा ग्रेजुएट हुए हैं उनको आगे के प्रयास के लिए 3,000 का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए 15,000 की एक मुफ्त वित्तीय सहायता युवाओं को दी जाएगी। पेपर लीक और भ्रष्टाचार के कारण जो युवा अपनी आयु गंवा बैठे हैं, योग्यता की जो आयु की सीमा है वो सभी को 5 साल तक आयु में छूट दिया जाएगा, जिससे वो फिर से एक बार अपना भविष्य तरार सके। हम सुनिश्चित करेंगे कि 2015 से भर्ती नहीं हुए युवाओं को पर्याप्त मौका मिले। 5 लाख युवाओं में प्रत्येक को उद्यमिता के लिए 10 लाख की वित्तीय सहाय, जो 5 लाख अनुदान के रूप में होगा और 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होगा। इसके माध्यम से युवाओं को उद्यमी बनाने का हम प्रयास करेंगे। বিজেপি কেবল সাধারণ মানুষের নয়, বঞ্চিত সরকারি কর্মচারীদের পাশে দাঁড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ক্ষমতায় আসার মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ৭ম বেতন কমিশন কার্যকর করা এবং বকেয়া ডিএ মিটিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে অমিত শাহ। রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করতে এবং কর্মীদের কাজের মর্যাদা ফেরাতে এই সিদ্ধান্ত নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অমিত শাহ। घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। पूरी जनता कलकत्ता तक बंगाल की जनता के मन में एक भय है कि अगर ये घुसपैठ इसी तरह से चलती रही तो पश्चिम बंगाल का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं रहेगा। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे और बंगाल और देश को सुरक्षित करेंगे। कि हम घुसपैठ पर निर्णायक प्रहार करेंगे। सालों से नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, मगर बाढ़ को 100% करने के लिए बंगाल सरकार हमें भूमि नहीं देती है। हमने तय किया है कि 45 दिन में ही भारत सरकार के गृह मंत्रालय को जितनी भूमि उपलब्ध कराना है वो उपलब्ध कराने का काम बंगाल सरकार समाप्त कर देगी। नदी नालों के अंदर पेट्रोलिंग की भारत सरकार के साथ मिलकर एक नई आधुनिक तकनीक से युक्त वैज्ञानिक व्यवस्था हम करेंगे। घुसपैठियों का आर्द्र भूमियों पर से और वन पर से और शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर से हम 200 दिन में ये हटाएंगे। हमने आसाम में कर दिखाया है। 1,50,000 एकड़ एंक्रोचमेंट हमने हटाया है। इसी तर्ज पर यहाँ एक
वैज्ञानिक कार्यक्रम बनाकर घुसपैठियों का अवैध अतिक्रमण हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। 34 বছরের বাম ও পরে 15 বছরের তৃণমূলের শাসনে হতশ্রী দশা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। যারা ভিন রাজ্যে নিয়মিত যাতায়াত করেন তারা জানেন দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে কতটা পিছিয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ। সেই হতাশায় মৃত সঞ্জীবনী বিজেপির সংকল্পপত্র। সিন্ডিকেট আর কাটমানি সংস্কৃতির বিনাশ ঘটিয়ে এক স্বচ্ছ, উন্নত ও শক্তিশালী পশ্চিমবঙ্গ গঠনের চাবিকাঠি হলো এই সংকল্পপত্র। পশ্চিমবঙ্গকে দিশা দেখাচ্ছে নরেন্দ্র মোদী, আর রাজ্যের মানুষ বলছে অন্ধকার কাটছে, আসছে সোনালী সকাল। চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শীত। পশ্চিমবঙ্গের সেই স্বপ্নই সফল করতে আজ ঐক্যবদ্ধ বাংলা। মোদীর গ্যারেন্টি আর শাহের সংকল্পই হতে চলেছে আগামী দিনে বাংলার জয়গান। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। महाराष्ट्र, मेहनतकश किसानों की भूमि, समृद्ध गांवों की पहचान और विकास की असीम संभावनाओं का प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आज महाराष्ट्र ग्रामीण विकास, जल प्रबंधन और कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है। सिंचाई कुओं के निर्माण के लिए स्पष्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू किए गए हैं, जिससे किसानों को स्थायी जल स्रोत मिल सके। राज्य भर में 1,01,000 से अधिक विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं। इन प्रयासों से अब तक 16 करोड़ 15 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन हुआ है। कोंकण क्षेत्र में खारे तटीय भूमि के विकास के लिए 286.65 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई है और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देते हुए हॉटिनेट पंजीकरण में महाराष्ट्र देश में प्रथम स्थान पर है। जल प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में महाराष्ट्र को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने पंप्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए 51 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनसे 70,000 मेगावाट क्षमता विकसित होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 3.83 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 1.13 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही नदी जोड़ परियोजनाओं और सिंचाई योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किश्त के तहत 1,808 करोड़ रुपए सीधे 90 लाख किसानों के खातों में पहुंचाए गए हैं। राज्य में प्राकृतिक खेती मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों के लिए फार्मा मोबाइल ऐप और डिजिटल किसान आईडी, एग्री स्टैक जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। कृषि में नई तकनीक लाने के लिए महा एग्री एआई पॉलिसी 2025-2029 लागू की गई है। साथ ही कृषि समृद्धि योजना के अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है और पीएम एफएमई व्यक्तिगत इकाइयों में महाराष्ट्र आज पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र बना रहा है समृद्ध गांव, सुरक्षित जल संसाधन और समृद्ध किसान। नया विश्वास, नया विकास, नया महाराष्ट्र।